गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी गुरु पे। तो अब दिन प्रतिदिन इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, और जिन लोगों को अंग्रेजी पढ़ना है तो वो हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बहुत ही बेसिक और ग्राउंड लेवल से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। यदि आपको एक छोटा सा भी सेंटेंस यदि नहीं समझ में आए, फिर हमें बताइए कमेंट करके। एक बार आप चैनल पर जुड़ जाइए जिनको भी अंग्रेजी सीखना है। अभी टेंस का 2-3 क्लास हो गया है, और आगे अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है। दो फॉर्म और पढ़ना है हमें, एक इंट्रोगेटिव और एक WH। तो आप लोग को नेगेटिव बनाए हैं क्या? अच्छा, उससे पहले आज हम लोग आप लोगों को कुछ दिए थे। हाँ ना, मारेंगे हम तो इतने झाड़ देंगे। I had given you some activities that you have to do right now, and you have to speak about your daily routines that you have completed right now, and you have to speak right now. Okay, have you prepared? Are you ready? Okay, now I will call you, and you all have to come here one by one, and you have to speak about your daily routine. Okay, and try to speak carefully and fluently. Okay. Let's start now. First of all, I would like to call Shivam. Shivam, come here, and you have to say something about your daily routine. You have to speak. Okay, come. नहीं इधर आ जाओ. Don't say. I am with you. Don't say. अच्छा से बोलिए। आप लोग प्रैक्टिस नहीं, अगर नहीं प्रैक्टिस किया हुआ तो पक्का मारेंगे। तो किसी लगा Listen carefully. Don't make noise. I get up 6 in the morning. I take tea in the morning. I drink 4 glass of water in the morning. Then I take the bath. I brush my teeth. I do some exercise. After taking exercise, I eat some fruits. I eat food at 10 o'clock. After that, I do household work. I am bad. I am good in. I am good child in my house. Me and my friend go to coaching at 11 o'clock p.m. I do 10 push-up in the morning. I go to play at 4 o'clock. I sleep at 10 o'clock at the night. Okay, Prabhat, you go. You go there. क्या है? Snacks. Go there and try to speak carefully. I get up 5 o'clock in the morning. First of all, I remember good and wish my parents good morning. After that, I go to washroom. I self my face. I mop my face. I brush my tooth. I go for walking. I come back home. I take bath. I get ready for college. I take breakfast. I go to college. I reach college. I attend my class at 10 o'clock. I have my lunch. I again attend my class. I come back home. I refresh myself. I take snacks. I go to play. I play for 2 hours. I come back home. I refresh myself. I study for 3 hours. I watching television. I discuss with my family members. I take dinner. After that, I go to bed. Be sweet dreaming.
ठीक है ना। I am a student. My daily life is very simple. I walk UP at 6 o'clock in the morning. I brush my teeth and take a bath. I take breakfast and get ready for school. I go to school and attend all my classes. I come back to home and I eat my lunch. Again I went to school and complete my study. I come back home and do my homework. I watch TV and play games. I have dinner and take a glass of milk. I go to bed early. My name is Rajat Kumar. I am a student of class 11th. I get up at 4 o'clock in morning. I brush my teeth and go to Hasa to runs. I do exercise half hours. After coming back home, I take bath. I drink 1 glass of milk. I study for 1 hours. I go to school at 9 o'clock. I comes to house at 3 o'clock. I rest. I take rest sometime and listen to music. At 4 o'clock in the evening, I go to the playground. I play cricket. I return to house before sunset. I study at 6 o'clock. I take my meal with my parents at 9 o'clock. Then I go to bed at 10 o'clock. So, my dear students, you all have seen right now that my all students came here and say about their daily routines. Some of the students tells that some of the students speak that English is so tough, but it's not real. English is a language you can learn with the help of practice. Okay, as you all have seen that my all students have come and say something. So this is not so tough, and anybody can learn with the help of practice, with the help of 4 skills that I have already told about it. That 4 skills, okay, WLSR. These 4 skills are the way with the help of you all can learn easily. Okay, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरा बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो 1 बाय 1 करके आया है और अपने अपने बारे में जो डेली रूटीन है ये लोग बताया है। ये आज पहला दिन था और टेंस का यूज करके इन लोगों ने अपने डेली रूटीन के बारे में बताया। तो दुनिया में ऐसा कोई चीज़ कुछ बना ही नहीं है जिसे सीखा नहीं जा सकता है, बस सीखने वाला होना चाहिए और सिखाने वाला होना चाहिए, है कि नहीं। तो आज आप लोगों ने देख के बोला है, इसी को और अच्छे तरीक़ा से अच्छा से डेली रूटीन लिख सकते हैं और उसको अब जो है प्रैक्टिस करके आइएगा और आपको बिना कॉपी का विदाउट एनी हेल्प यू हैव टू स्पीक। ओके, हाँ, नेक्स्ट डे को क्या करना है कि आपको बिना किसी हेल्प का आपको यहाँ पे बिना किसी मदद का यहाँ पे बोलना है, ठीक है ना। सो यदि आप लोगों को यदि अंग्रेजी सीखनी है तो जुड़ जाइए हमारा यूट्यूब चैनल KK गुरु से, और मैं गारंटी और मैं दावा देता हूँ कि एक छोटा जो समस्या होगा वो कोई समस्या हम होने नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखे ज़रूरी नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी लिख ही देते हैं।
चलिए, जिन लोगों ने नेगेटिव सीख लिया है उसके लिए इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच बहुत ही आसान है। और जो ये टेंस सीख गया, समझो आने वाला जो भी स्ट्रक्चर्स होगा, जो भी रूल्स होगा, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा परेशान जो करता है वो टेंस का जो सबसे पहला रूल होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, वही स्टूडेंट के लिए सिर दर्द बन जाता है। ठीक है, तो जिनको अगर ये आसानी से आप लोग अगर सीख गए हैं तो बाकी तो बहुत ही बउआ वाला है। बुआ कुछ भी नहीं है, आराम से सीख जाओगे, टेंशन नहीं लो। तो आप लोग ने नेगेटिव सीख लिया है ना? पक्का? सच्ची? मान के चलो सीख लिया है? हाँ, नेगेटिव बनाए लोल कहीं का, तो इतने झाड़ देंगे हम। हम बताए थे नेगेटिव करके लाने के लिए, नहीं बताए थे। अच्छा, सिर्फ इतना बता दो मुझे, एक बार और पूछ लेते क्या? आप लोग तो बेशर्म हो ही, मैं भी बेशर्म। तो कहता है बेशर्म किसको बोलते हैं? हट, बेशर्म उसको बोलते हैं जो एक ही चीज़ को बिना एकदम बार बार करते रहता है, तो जो सुनता नहीं है, 10 बार बोलना पड़ता है, उसको बोलते हैं बेशर्म। तो एक ही चीज़ को आप लोग बार बार कर रहे हो, एक ही चीज़ को हमको बार बार पढ़ाना पड़ रहा है। आप बेशर्म, था हम बेशर्म, है कि नहीं? चलिए, तो अब हम देख लेते हैं, आप पूछ लेते हैं। हाँ, तो वो अमन जी आप बताइए, V5 किसके साथ लगाते हैं? V5 किसके साथ लगाते हैं? हाँ, वाह, होशियार हो गया है 2 दिन में। तो डज किसके साथ लगाएंगे? एकदम होशियार हो गया। हाँ, आप प्रभात, V1 किसके साथ लगाते हैं? वेरी गुड, एकदम होशियार हो गया। ओके, आप बताइए थर्ड पर्सन का प्लूरल रूप क्या होगा? थर्ड पर्सन प्लूरल, हाँ, थर्ड पर्सन में प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या सब आएगा? हाँ, हाईले देख कॉपी तुरंत खोलने लगता है, एकदम छोटा है एकदम से। हाँ है, चुप। हाँ बोलिए, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या आएगा? आप लोग भी बताइए कमेंट करके, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या सब आएगा? यदि आप लोग देख रहे हैं तो यदि सीखना चाहते हैं तो आप लोग भी बता सकते हैं। हाँ बताइए, ए प्रभात बोलना। वाह, मज़ा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ही सी इट और एक नाम, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। एकदम बेशरम है चुट्टा कहीं का। सच में बेशरम है। हाँ, तो शिवम आप बताइए। ये बता रहा है सो? हैं? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या आएगा? और कुछ आएगा? V1। एक भी आएगा, 2 भी आएगा। वाह, लगता है हमको प्रचार करवाना पड़ेगा। अब रजत बताइए, देखिए पूरा बताएगा एकदम, बहुत मुश्किल है। वाह, दिल खुश हो गया, क्या मज़ा आ गया, गजब गजब। ऐसे ऐसे बच्चे हैं नाम करने वाले, हम तो धन्य हो गए कि आप लोग को पढ़ाने आए। उल्टा लाफा मारेंगे, अभी देख लिया है तो हीरो बनता है। हाँ, आपने बोला है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे एक नाम और 2 नाम। दे 2 नाम बोले ना सर? एक नाम कौन बोला है अभी? बोले एक नाम से अधिक। यहाँ पे बेवकूफ़ लिखा हुआ है क्या? ये तो बोल रहा है गधा कहीं का, इतना जल्दी भूल जाता हूँ। मुँहमा में टुकड़ा कोच के मार देंगे तू लोग को हम। सब थुथुर सब है एकदम सब। थर्ड पर्सन में प्लूरल तो एगो सिंगुलर बताए थे, जिसे एगो का बोध हो,
आप प्लूरल बताए थे, जैसे दूगो का बुध हो तो प्लूरल में आता है दे आ दूगो नाम। ये कहिया बोला है रे तू? तो आप तो एको का नाम घुसा दिए थे उसमें। दो नाम तो ये है। इतना जल्दी भूल जाते हो तो कहाँ से अंग्रेजी सीख पाओगे रे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बताइए फटाफट। वाह, मन करता है रोमन रेंज वाला पंच ले। हाँ, ऐसा पंच मारेंगे कि बस एक बार में बेहोश हो जाएगा। हाँ, पर बात बताओ, फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? अब बताओ सेकंड पर्सन में। अब बताओ थर्ड पर्सन में, दोनों बताना। थर्ड पर्सन प्लूरल में दे ही सी इट, एक नाम दो नाम। थर्ड पर्सन प्लूरल पूछ रहे हैं। प्लूरल पूछ रहे हैं सर, दे दो नाम। और सिंगुलर में? सिंगुलर ही सी दे एक नाम। तो देखा है गुस्सा दिया फिर वही में। इट एक नाम। ओके, अब बताइए रजत, B5 किसके साथ लगाते हैं? वाह, क्या बात है। सबको ममोर ममोर के बोलता है, मन करता है कितना मार मारे। तो बउआ रे, फर्स्ट पर्सन सबको मालूम है, फर्स्ट पर्सन मालूम है सबको, आई वी। सेकेंड मालूम है, सेकेंड मालूम है यू, और थर्ड मैंने बता ही दिया। इतना ही तो होता है। तो जिसमें से सिर्फ ये जो है थर्ड पर्सन में सिंगुलर का बात कर रहे हैं, ही सी इट एक नाम। ये इसके साथ से B5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जहाँ B5 आएगा वहाँ क्या आएगा? डज आएगा, ठीक है। बस इतना तो रखना है, इसके अलावा बाकी जो आ जाएगा वो B1 नहीं तो डू लगाएंगे, ठीक है। मोटा मोटी इतना समझो ना यार, आप नहीं भूलेंगे सर करता है। तो चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिख लेते, बैठ जाइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा, पहले डू या डज को बाहर कर देंगे, ठीक है। डू या डज पहले निकल जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर V1 आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। यही है। अब इसमें क्या करेंगे, हम किसी सवाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल करते हैं जैसे कि डू यू ईट, क्या आप खाना खाते हैं? डू यू वॉच मूवी, क्या फिल्म देखते हैं? हाँ, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह में सवेरे उठते हैं? हाँ, तो जो भी सवाल होता है जो आपके मन में कोई जो ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल होता है वो पूछते हैं। और WH में जाएगा तो वो सब्जेक्टिव सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल लिखते हैं, अब आज कन्वर्सेशन करा देते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव जब भी पढ़ाते हैं तो इसका मतलब है वो कन्वर्सेशन से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हो जाएगा आपको, जैसे क्या आप लोग सुबह में सवेरे उठते हैं? सुबह में है गधा कहीं का, निगेटिव कल ही बना ले। सवेरे उठते हैं, ये हो गया क्वेश्चन। मैं आप लोग से सवाल पूछ रहा हूँ ना, कोई भी पूछेगा तो क्या पूछेगा, बुआ क्या, ये ऐसे पूछेगा, बुआ ये एक बात बताओ कि आप सुबह में सवेरे उठते हो? पढ़ाई तो बहुते करता है कि आप सुबह में उठते हो, तो ये नहीं पूछता है बुआ। तो वही तो हम बता रहे हैं कि आप सुबह में सवेरे उठते हो, तो कैसे बनाएंगे? डू लगे, डू या डज? डू। तो डू आप उससे पहले फिर कले वाला तोड़ देते हैं, अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए। पहले एक बार और बता लीजिए। अमन बताओ सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? वेरी गुड। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, जो जिनको अंग्रेजी सीखना है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। वर्ब कहाँ है? अरे कहीं का, ये हो गया उठना। ये क्या हो गया? वर्ब, ठीक है। अगर सवेरे की बात करें तो ये एडजेक्टिव भी नहीं है, ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब किसको बोलते हैं बुआ? जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है ना। जो नाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव। जैसे कि ये जो मार्कर है ये अच्छा है, ये कलम अच्छा है, तो कलम नाउन है ना। इसकी विशेषता बता रहे हैं, ये कलम काला है तो दिस इज़ ब्लैक पेन, तो ये जो ब्लैक आया ये नाउन के लिए आया ना, तो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या? जो नाम की विशेषता बताता है। जैसे शिवम अच्छा लड़का है, तो हम शिवम की विशेष तारीफ कर रहे हैं ना, तो शिवम लड़का है ना, नाम हुआ ना, तो इसकी तारीफ कर रहे हैं। चुप रहे, इसकी तारीफ कर रहे हैं ना। तो जब किसी नाम की तारीफ करेंगे ना तो वो एडजेक्टिव होगा,
ठीक है। जिस शब्द से किसी नाम की तारीफ करेंगे या उसकी बुराई करेंगे वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है ना। शिवम लंबा लड़का है, इसकी तारीफ कर रहे हैं ना, तो किससे तक कर रहे हैं? लंबा से, तो लंबा क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है। और जब किसी भर्ब की अगर हम तारीफ करेंगे, भर्ब के बारे में बताएंगे, तो वो हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। जैसे कि वो धीरे धीरे चलता है, तो चलना यहाँ पे क्या हो गया? भर्ब। कैसा चलता है? धीरे धीरे, तो भर्ब के बारे में बता रहा है ना, कैसे चलता है? धीरे धीरे, तो वो एडवर्ब हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया बुआ आपको सवेरे जो हो गया क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। उसके बाद ये बाकी क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट बच गया, और ये हो गया हमारा ये तो डू डज आ जाएगा। ये हो गया हमारा डू या डज। तो अब यदि जिनके बारे में बोल रहा हूँ कि इन लोगों को तो मैं बता चुका हूँ, आप लोगों में से कोई भी अगर मेरा स्टूडेंट अगर देख रहे हैं वीडियो को और जिनको अगर अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही है, तो ये देख लीजिए एक बार कि अब मैंने सब कुछ बता दिया है, रूल मैंने सब कुछ लिख दिया है, यहाँ सब कुछ पता चल गया है। अब ना मैं टीचर हूँ ना कोई और टीचर है। टीचर कौन है? ये भाई साहब, ठीक है। अब ये जो कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे, आसानी से बन जाएगा। अब ये कहता है डू या डज पहले लगाने के लिए, तो आप लोगों को तो मालूम है कि डज कहाँ लगाते हैं, डू कहाँ लगाते हैं। तो सब्जेक्ट है आप लोग के हिसाब से क्या आएगा? डू या डज? वेरी गुड, तो आ गया डू। अब कहता है इसका खेल हो गया ख़त्म। अब कहता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? वेरी गुड, यू। अब कहता है V1, तो वर्ब क्या है? उठना, तो गेट अप, गेट अप। अब कहता है ऑब्जेक्ट, तो सवेरे का क्या होता है? अर्ली, सवेरे। मे का क्या होता है? इन, सुबह में, इन द मॉर्निंग। हाँ, तो सवेरे का मतलब वही ना हुआ रे ना, बैठ जाइए। समझ में आ गया बउआ? एक चीज़ क्या गलती है बताइए तो, इसमें कोई पकड़ पाएगा? गलती क्या है इसमें? हाँ, एकदम होशियार हो गया है। कहाँ से पढ़ लिया है? चलिए नोट कीजिए। अब आप लोगों को सवाल करना है और 1 बाय 1 कोई यहाँ आएगा और उससे सवाल पूछा जाएगा सिर्फ इसकी मदद से, ठीक है। चलिए अभी नोट कीजिए फटाफट फटाफट। क्या चाहिए? पेन चाहिए? ओके, नोट कीजिए फटाफट। कैसनो कमज़ोर बच्चा आ जाएगा ना, यदि हम सिखाने पर उतर गए तो हम उसको सिखा के छोड़ेंगे। काहे कि उसका हम हड्डी पकड़ लेते हैं, रीढ़ की हड्डी। हाँ, भले हम जल्दीबाजी में हम आप लोग को थोड़ा अच्छा समझ के हम जल्दीबाजी में खींच लेते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम दे आप एक बार खाली कह दीजिए कि सर नहीं समझे हैं, आप पढ़ा दीजिए, जैसे समझाना है समझा के दिखाइए हमको। हम हाथ पैर तोड़ के हम समझा देंगे आप लोगों को। कहने का मतलब सेंटेंस का हाथ पैर, सेंटेंस का ये तोड़ तोड़ के समझा देंगे, एकदम बउआ नहीं था। हाँ गोलू जी देख लीजिएगा बैटरी उटरी। हाँ वैसे अगर हो गया तो क्लियर ही है। हाँ क्लियर कर दीजिए।